How helps the graphotherapy to Parkinson's client? Aparna ma'am's handwriting before start graphotherapy. See the magic after graphotherapy. Formation. Pay attention to the letter F. How many of you are able to see the letter D? Okay. Look at in one letter, so much of vibration. Raise your hand if you're able to see that. Look at W. The W has so much of vibrations in it. Look at even the number 3, 8. Look at the F. Look at the P there. Look at the T there. Can you see the level of tremors you have? Yeah, I don't have a better picture. I'll get it for you in the coming days. But how many of you are able to see that? Okay, I see there is a impact of Parkinson, and that's how it writes. Now imagine if you have to sign a check. Now imagine if you have to write a letter. Imagine now you have to make a note of it. Will you be able to write in front of others? तभी हमारे पास एक stigma है with handwriting, bad handwriting. Plus, if you are writing like this, you're not going to do it, right? Now the question is, Imran, can graphotherapy help people like this? And if at all, yes, to what extent? Remember I said something, when I saw this handwriting, I asked multiple times, is it सच में इन्होंने लिखा हुआ है क्या? So from where to where? Heart goes out to this lady. She did 150 days of graphotherapy. Okay, that's commendable. Okay. And you know what is interesting about this? Introduce you to this lady. She is basically the mentee of our MPG student, Josna ji. She's here with me right now. And I'll also bring her up on the screen. And look at a very special mention here. Trusted the process and followed the 30 days and the 90 days of graphotherapy. No special coaching or training. And she is a lady of Parkinson's for 8 years. 8 years. And now she's in love with writing. So she's picking up 4 lines book. She's picking up 2 lines book. Now she's consistently writing beyond that. Like that's the commitment which people show up with. That's the commitment which people show up with. Now I want to bring in Josna ji. Josna ji, आप थोड़ा बताइए because first of all, many congratulations to you, Josna ji. आपने इतना बढ़िया काम किया. I am super impressed because remember हमारे क्लास में कभी-कभार ऐसे लोग होते हैं जो बहुत साइलेंट होते हैं लेकिन बड़ा कमाल का काम करते रहते हैं. तो जोशना जी वो कैटेगरी में आते हैं कि वो एकदम ज्यादा सवाल नहीं करते. अगर उनको कुछ भी बात करना था तो मुझसे बात कर लेते थे या तो मुझसे सवाल कर लेते थे. एंड ऑल्सो आई वांट टू अप्रिशिएट दैट. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. कभी कभार आप मुझे मैसेज करते, मैं थोड़ा टाइम लगाता रेस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू. जोशना जी थोड़ा बताइए इसके बारे में. पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और कितने दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. देन rest of the things. Everybody say hello to Josna there. Look at the smile on her face there. Yes, Josna ji, please go ahead. हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत बेहतरीन तरीके से. नमस्ते सर. मेरा नाम जोशना पास्ते है. मैं पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में टीचर हूँ. और आपका जो कोर्स है वो मैंने लास्ट जून में स्टार्ट किया. उसके बाद आईपी लेवल जब कर रही थी तो आपने बोला था कि 3 केस स्टडी लेने. तो मैंने कैंसर मेरी फ्रेंड है उसका लिया था. और ये हमारे सोसाइटी में रहती थी. तो मैं वॉक के लिए गई थी. तो एक दिन मुझे उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों मिले थे. तो उन्होंने ये बताया पार्किंसन के. मैंने तभी तक मुझे पता नहीं था ये चीज क्या है. तो मुझे ऐसा लगा चलो मैं ये जो हम हैंड राइटिंग करते हैं तो इसका इनको कुछ फायदा होता है क्या देखते हैं. तो एक दिन मैं संडे उनके घर गई हैंड राइटिंग सैंपल लेने के लिए. तो उन्होंने पार्किंसन का गोली लिया था. तो बिल्कुल वो बोली कि अभी मैं लिख नहीं सकता. तो वो बोली कि मैं कितने दिन अभी लिख ही नहीं सकती. मैं बैंक में इवन साइन भी नहीं कर सकती. तो मुझे वापस जाना पॉसिबल नहीं था. तो मैं बोली कि ठीक है आंटी, मैं एक आधा घंटा में ठहरती हूँ.
आपको जब लगेगा लिखना मतलब हो जाएगा तो आप मुझे दे देना। तो फिर वो रेडी हो गई। आधे घंटे के बाद उन्होंने सैंपल दिया। फिर उसके बाद मैंने मतलब पेपर पे प्लेन पेपर के पे मतलब लिखने के लिए दिया बुक आने तक, अपना जो 30 डेज वाला। तो फिर उसके बाद फिर बुक आने के बाद मैंने मतलब वो बुक देने के बाद वो कंटिन्यू मतलब डेली मतलब लिख के मुझसे भेजती थी। और आफ्टर मतलब 30 डेज उनको बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब डाइजेशन का भी और उनका क्या बोलते हैं मतलब आत्मविश्वास भी बढ़ा उनका। तो फिर और वो कैसे एक गुड स्टूडेंट की तरह, हाँ वो पूरा मतलब डेली लिखती थी। और उसके बाद फिर मैंने उनको 30 डेज का मेरी तरफ से दिया था बुक। तो फिर बाद में वो 90 डेज के लिए मतलब तैयार हो गई। वो 90 डेज का भी मतलब फीस मैंने कम मतलब लिया, क्योंकि मुझे उनका प्रोग्रेस मुझे चाहिए था। और आफ्टर 90 डेज उनमें बहुत से मतलब चेंजेस आए। शिल्पा जी ने कल मुझे फोन किया था, तो वो लिखी सच में उनका ही है क्या? तो मैं लिखी हाँ। फिर उन्होंने मतलब मैंने भेज दिया उनको। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू शिल्पा जी एंड अहमद सर उन्होंने मुझे बहुत मतलब हमेशा मतलब जो भी मेरा कुछ भी ये रहता है, डाउट्स रहते हैं, वो मतलब आज भी मुझे करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू सो मच ऑल कम्युनिटी। और कम्युनिटी में भी एक पार्किंसन वाला कोई उनके पास स्टूडेंट था, तो उन्होंने बोला था कि कैसे करने का, तो उनको मैंने पर्सनली भेज दिया मैंने कैसे किया था वो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ज्योत्सना जी, थैंक यू। आई एम रियली इम्प्रेस एंड ये आपने कमाल कर दिया। Okay, in fact, if you ask me, Imran, how big is this testimonial? How many of you agree with me that this is like the best of your testimonial? So, you deserve a Golden Pen Award. So, congratulations for this, everybody. I want to declare in front of all